Here I am going to start with the next point of the lesson. I am representing this lesson from Information Technology Department. Myself is Professor Vibhavari Javale. As usually we are first go through the index of our lesson. So here I am going to share the index. First we need to be learned about the ordered list or numbered list. Second, we will start with to learn unordered list. Third, definition list, nested list, in which we are going to learn about the two things: single level nested list and multi-level nested list. Now we will start with our first point of the index, that is ordered list or a numbered list. As we know about the word ordered list or a numbered list, so that means a list is including certain information that should be listed in a ordered manner or the numbered manner. मतलब एक लिस्ट होगी जो एक ऑर्डर में होगी और उसे एक पर्टिकुलर नंबर का सीक्वेंस असाइन किया गया होगा. So let's start with the definition. The OL tag defines an ordered list. An ordered list can be numerical or alphabetical. ऑर्डर होगा मतलब उसका एक सीक्वेंस होगा. ऑर्डर लिस्ट हो और अगर नंबर लिस्ट हो, इट शुड बी रिप्रेजेंटेड while using the OL tag. As we are known about the name order list, so that means the tag should be enrolled as OL. Each and every information content should be listed in the form of LI tag. All the information content should be enclosed in between LI tag open, LI tag close. Now we can see the attributes of the OL tag. So there are three tags of OL. First, a type. Second, start, and third one, reverse. If in case we are not supposed to allocate or use any attribute of the OL, so then by default it will take the sequence in the form of 1 2 3 4 5. So these are the numbers. The 1 is the default value, as I said, and there are the various types we can set. Okay, for example, 1 A capital, I small. Okay, so for setting this type we can allocate or set the order of our sequence of information content. Specify the numbering type for the use item. Okay, मतलब एक कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने OL के साथ कोई भी एट्रीब्यूट एलोकेट नहीं किया तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1 2 3 4, ऐसे सिर्फ नंबर्स ही जाएंगे. अगर हमें टाइप सेट करना होगा तो वहाँ पर OL tag open along with the attribute type is equal to small a is equal to कैपिटल A इज़ इक्वल टू कैपिटल I इज़ इक्वल टू I. ऐसे हम सेट करने के बाद आगे के जो कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो उसके सीक्वेंशियल जो मैनर रहेगा, जैसे A B C D, इसमें आ जाएंगे. Now we have to see the second attribute of the OL. So it is the start. Start is use the attribute to set start from the particular series or assigned. So that means specifies the starting number of the first item in an order list. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई रोल नंबर है कि 9950 से ही अगर मुझे स्टार्ट करना है, उसके आगे के नंबर का सीक्वेंस मुझे एलोकेट करना है, तो मेरा टाइप क्या होगा, स्टार्ट शुड बी विद द 9950, ऐसा होना चाहिए. उसके बाद के जो नंबर से जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो उसके आगे के जो सीक्वेंशियल वे होगा, जैसे 9951, उसके आगे का इंफॉर्मेशन वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा व्हाइल यूजिंग द LI टैग ओपन और LI टैग क्लोज. तो ऐसे मैनर में सीरीज़ अगर हमें सेट करना है तो स्टार्ट से हम कर सकते.
reverse. This attribute specifies that the items of the list are specified in a reverse order. अगर हमने OL, if we are using the reverse attribute along with the OL tag, so that means it will set the 3, 2, 1. It is the descending order of our number. Okay, here I am going to show you first the execution screen I require to enclose these entire information. फर्स्ट वन, एक बार देखो ये जो एग्जीक्यूशन स्क्रीन है, यहाँ पर 3 क्या है मेन पॉइंट्स है. उसका नाम क्या है? लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स. लिस्ट ऑफ टॉपिक्स स्टार्ट विद द सीरीज 50. देन द थर्ड टाइटल इज लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन रिवर्स सीक्वेंस. फर्स्ट वन, अभी इसके अंदर देखो द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स, उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है. देयर आर द 3 इंफॉर्मेशन सेट. फर्स्ट the basics of the IT, second HTML5, third the PostgreSQL. okay, now second topic देखो क्या है. लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स स्टार्ट विद द सीरीज़ 50. यहाँ पर मैंने सीरीज़ एलोकेट की है कि कहाँ से आगे उसका नंबरिंग होगा. तो अगर मैं सेट करती हूँ 50 से, तो जो भी टॉपिक्स रहेंगे उनका सीरीज़ चेंज हो गया. देखो स्टार्टेड विद द 50, देन 51, 52. And now we will see the third attribute of the OL. वो क्या है? A list of the topics in a reverse. okay, अगर reverse sequence में set करना है तो 3, 2, 1 ऐसे set होता है. Now I will show you the code based on this execution screen. ये screen आने के लिए कौन सा code important है? See here carefully. Here we go. First one, H1 tag are being used here 3 times to representing the main title or the heading should be printed or get printed over the execution screen. इसलिए मैंने हर एक जो टॉपिक होगा वो H1 के अंदर एनरोल किया है. Then I have been used the OL tag. OL tag open and OL tag close. Here I am not use any kind of attribute, then it will take its default value as a 1. इसलिए यहाँ पर मैंने OL के साथ कोई भी attribute यूज़ नहीं किया है, तो it will take its default value. okay, again all the content should be each and every content should be enrolled in between li tag open or li tag close. So these are the 3 list. Now सेकेंड जो मेन हेडिंग होगा वो होगा अ लिस्ट ऑफ द टॉपिक स्टार्ट विद द सीरीज़ 50. सो देयर शुड बी द पर्टिकुलर सीरीज़ वी हैव टू एलोकेट OL टैग. ओके, OL टैग के बाद एक पर्टिकुलर सीरीज़ हमें वहाँ पर एलोकेट करनी चाहिए. वो क्या है? OL स्पेस स्टार्ट इज़ इक्वल टू 50. सो दैट मीन्स आगे के जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट होगा वो 50 के आगे स्टार्ट हो जाएगा. नाउ जैसे सेम मैंने इंफॉर्मेशन कंटेंट सेम लिए है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है. एट ईच एंड एवरी टाइम आई नीड टू यूज़ द li टैग्स. ओके, नाउ द थर्ड जो भी टाइटल है उसमें हमने क्या देखा है? लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इन रिवर्स ऑर्डर. अगर सेम जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है आई नीड टू प्रिंटेड इन अ रिवर्स मैनर, तो सिंपली क्या करना है? OL स्पेस रिवर्स, मतलब जो भी सीक्वेंस होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो आने वाला है वो क्या होगा? रिवर्स में आएगा. 3, 2, 1 जैसे मैंने तुमको दिखाया था एग्जीक्यूशन स्क्रीन पे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अनऑर्डर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट. फर्स्ट, एन unordered list created using the UL tag. जैसे unordered list है, so that should be using by UL tag, and each list item starts with the li tag. UL tag means unordered list. यहाँ पर कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, कोई नंबरिंग नहीं होगा, लेकिन अंदर के इंफॉर्मेशन कंटेंट जो भी होंगे दैट शुड बी enclosed in a li tag. The list
items in unordered list are marked with the bullets, small black circles by default. मतलब small जो black circles है, अगर हमने unordered list के अंदर particular information content enroll किया, UL के along with that I have not been assigned any attributes over there, then it will take by default the value small black circles. Then now we are going to see the attributes of the UL tag. First, so we have to set the type before that. So there are the three types. First, a disk. Second, a circle. Third, square. If you are not setting any value for the UL tag, any attribute of the UL tag, then it will take the by default small dark circle or the disk. Sets a list item marker to a bullet. Circle sets the list item marker to a circle. Sets a list item marker to square. Now I am going to show you one of the execution screen in which I have enclosed the three attributes of the UL, that means the unordered list. See the first one, the unordered list for the small dark circles or the disk I have been used. Same content I need to use there, the basics of the IT, HTML5, the PostgreSQL. In that second case, I have been used the circle mark. So that means I need to set the attribute of the UL in the form of circle, and then only I will get the these symbolic manner, that is only circle. Okay. Now see the third one, the third list. It is representing while using the square. So I need to set the UL attribute in the form of square, and then only I will get this kind of execution screen. So I have enclosed the three types here. First, I have been used a disk. Second, circle. Third is square. Now, so we will see the code behind it. See here. For the title I have been given, I need to use the h1 tag, h2 tag, or h3 tag. Here I am been using h3 tag for the 3 times. Okay. Now if I need to use or representing my code for unordered list or without indicating any attribute, so I can use here simply UL tag open and UL tag close. In between I will use the information content, okay, and that will get printed after the execution in the form of small dark circles. Then second one, UL space type. When I will get the circle, then UL and the type is attribute of UL, and I will set the value in the form of circle. Then it will get printed along with the circle for each and every information content. Now if I will set the value UL space attribute name type is equal to square, square is the value of the type, then it will get printed square, the value in front of each and every information content. Then here I am going to explain the definition list. See, there are the many definitions so we supposed to use in our day-to-day life. If I require to get printed over the page, so we can use the definition list also, and here we only we don't have only the single definition. If we are come with the number of definition list, at that time we can use the DL tag open and DL tag close. So we will start with the definition. To define a definition list, if we have the multiple definitions to represent, then we can use the DL tag. So to define the definition list, DL tag
दैट मीन्स द डेफिनेशन लिस्ट इज़ बीइंग यूज। मतलब हमें अगर एक पेज ये करना है, जनरेट करना है, जहाँ पर हमें बहुत सारे डेफिनेशन की लिस्ट है हमारे पास, और उसे एक ही टैग के अंदर अगर मेंशन करना है तो इन दैट केस आई विल यूज़ द DL टैग। ओके, अगर एक ही डेफिनेशन होगी तो इट्स ओके, बट अगर मल्टीपल होंगे तो DL टैग यूज़ करना पड़ता है। यू कैन क्रिएट द आइटम्स इन अ डेफिनेशन लिस्ट विद द, अभी एक एक डेफिनेशन जैसे हम देखते जाएंगे, जो उसके टर्म रहता है कि जैसे एक होगा कि क्या इंटरनेट मतलब क्या है। इंटरनेट ये क्या है, ये एक टर्म है जो हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। सो जो टर्म डिफाइन करना है वो आएगा इन बिटवीन द DT टैग ओपन, DT टैग क्लोज। देन डिफाइन द डेफिनेशन एंड देन उसके बाद में हमें वही डेफिनेशन को अगर एक्सप्लेन करना है तो दैट ऑल द एक्सप्लेनेशन शुड बी एनक्लोज इन बिटवीन द DD टैग। दैट मीन्स डिफाइन द डेफिनेशन टैग। Then I will explain in detail about the DT tag and DD tag. DT it means define the term। जो भी टर्म, जो भी डेफिनेशन की टर्म रहेगी उसे हमें एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए हमें उसे एनक्लोज करना पड़ता है इन बिटवीन DT tag open and DT tag close. See here, DT is used to define the term. Then DD tag it means it is used to define the terms डेफिनेशन। जो टर्म हमने ऊपर एनक्लोज किया है, रिप्रेजेंट किया है, उसे अगर इन डिटेल पूरी एक्सप्लेनेशन अगर हमें जो डेफिनेशन है उसे अगर हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, तो वो प्रिंट होगी इन बिटवीन द DD टैग ओपन, DD टैग क्लोज। Now I am going to show you this execution screen based on the theory of the definition list. See here, first is example of HTML definition list. Here I am going to explain the 3 definitions. उसके नाम क्या है, web, HTML, CSS। web, HTML and CSS ये मेरे definition के क्या है, टर्म है। तो इसे प्रिंट करने के लिए I must use DT tag open, DT tag close, because ये क्या है, मेरे definition के टर्म्स है। Now start with the definition part and then individual जो टर्म्स है उसके नीचे मुझे definition भी क्या करनी, allocate करनी। part of the internet that contains the websites and the web pages, ये पूरा explanation है एक definition का, तो वो आना चाहिए in between the DD tag open, DD tag close। it means what, DD stands for define the definition। पूरी definition अगर मुझे क्या करना है, define करना है, at that time I must use the DD tag। same it is same applies to the HTML term and CSS term also, and for the explanation of each and every definition. Now I am going to show you the exact code behind. See here, the definition list। यहाँ पर मेरे 3 डेफिनेशन है, इसलिए I must started with the DL tag। DL represents a definition list। in between मुझे यहाँ पर 3 डेफिनेशन क्या करना है, allocate करना है। वो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, I must require to define the term, so I must use DT tag open and DT tag close, and then in between them I will use the term the web। ये मेरे टर्म हो गए। देन एक ही डेफिनेशन टर्म को अगर मुझे आगे एक्सप्लेन करना है तो वो क्या आ गया, द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट कंटेन्स द वेबसाइट एंड द वेब पेजेस। it is the definition of my term, so that should be enclosed in a DD tag open, DD tag close. Now I am going to start with the second, the term. It is the HTML, so that should be printed in between the DT tag, because वो क्या है, define the term, DT tag open and DT tag close. Now to print the definition of the HTML term, I must enclose that definition, the markup language for the creating the web pages, in between the DD tag open and DD tag close. Now I am going to start with the third definition. It is CSS. CSS is the name of the term I am being used or enclosed in this
definition list. So this list or this term should be enclosed again with the dt, because dt means define the term. So for that I will use dt tag open css and dt tag close. Here each and to represent each and every term I have been using one tag over here. It is for the b tag. B tag is representing to print the particular word in a bold manner. Now if I am going to explain the third definition of mine, that is CSS, I must require to enclose my entire definition in between the dd tag open and dd tag close. And after execution of the term and the explanation of that while using the dt tag and dd tag for the third time, I must require to enclose the close dl tag. Now I am going to give you one of example assignment. For that you have to solve. See here, it is the execution screen of my code, the dl, dd and dt elements. These three elements are used to create a description list: the coffee, black hot coffee, the milk, the white cold milk, drink. Okay, तो ये प्रिंट करने के लिए जो कोडिंग रिक्वायर्ड होगा बेस्ड ऑन द प्रीवियस द पॉइंट्स आई हैव बीन टॉट, उसके ऊपर आप लोगों को असाइनमेंट लिखना है. नेस्टेड लिस्ट. ये नेस्टेड लिस्ट मतलब क्या होता है, एक लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट हो. सो इन दैट वे वी कैन एलोकेट दैट लिस्ट इन अ nested list manner. For example, a list within another list, either order list or unordered list is called the nested list. यहाँ पर कोई भी ये नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है कि तुमको ऑर्डर लिस्ट जो है ना नंबरिंग वाली, और जहाँ पर अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हो, रोमन नंबरिंग यूज़ कर रहे हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. और अनऑर्डर्ड जो लिस्ट तुम लोग यूज़ कर रहे हो उसी वे में जाना है, ऐसे भी कुछ नहीं है. लेकिन क्या है कि वो एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट होनी चाहिए, तब जाके उसे हम क्या बोल सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट. हियर, so whenever we need to elaborate the things more in detail, we must require the nested list format. At the time we can use this nested list concept as it is in the list within the list. So there are the two types. First one is single level list, second one is multi-level list. Now the first of all we are going with the output of the single level nested list. See here, एक पूरी क्या है मेरे पास, एक लिस्ट है. okay? अगर उस लिस्ट में से मेरे 3 पॉइंट्स है, 3 मेन पॉइंट्स है. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू द आईटी, सेकंड है इंट्रोडक्शन टू द डीबीएमएस, थर्ड है पोस्टग्रेसक्यूएल. सेकंड जो मेरा सेकंड पॉइंट जो है, ये जो एक लिस्ट है उस लिस्ट में से सेकंड पॉइंट को सब पॉइंट्स है. ओके, ये ऐसे पूरा जो मेरा इंडेक्स है उसमें एक ही बार हुआ है. ओके, क्योंकि जहाँ पर मैंने मेरे पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए सब पॉइंट्स एलोकेट किए हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं सिंगल लेवल नेस्टेड लिस्ट. समझ में आ रहा है? सी हियर 1 2 3. तो ये मेरे क्या है, दीज आर द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैव बीन एनरोल्ड इन अ OL टैग, बिकॉज इधर नंबर्स है ना, और नंबर्स क्या है 1 2 3 इसका सीक्वेंस है. बट सेकंड जो पॉइंट है मेरा, वहाँ पर मैंने उसके 3 जो सब पॉइंट्स है वो भी क्या किए हैं, एलोकेट किए हैं. लेकिन जो मैंने वहाँ पर यूज़ किया है वो है UL टैग. इट मीन्स व्हाट, द अनऑर्डर्ड लिस्ट वो यूज़ किया है. लेकिन जो सिम्बॉल्स आगे आए हैं वो क्या है, सर्कल. ओके, अभी सेम जो एग्जीक्यूशन स्क्रीन है उसका कोड कैसे होगा देखो. कि जैसे हम लोगों ने एग्जीक्यूशन स्क्रीन को देखा था, उसमें क्या था, द फर्स्ट वन वो क्या होगा, टाइटल होगा HTML नेस्टेड लिस्ट. वो था पूरी की पूरी जो एक्चुअल जो लिस्ट थी वो मेरी नंबरिंग में थी, मतलब 1 2 3 था. एंड सेकंड को क्या थे, मेरे सब पॉइंट्स थे. तो मतलब दैट शुड बी योर मेन इंडेक्स शुड बी एनक्लोज while using the OL tag. मतलब we have to give certain order of our information content.
तो उसमें से फर्स्ट कंटेंट क्या था, इंट्रोडक्शन टू द आईटी, इंट्रोडक्शन टू द डीबीएमएस, ये मेरे कंटेंट हो गए। वो कंटेंट को नंबरिंग आना चाहिए, इसलिए मैंने ओएल के साथ ही उसे क्या किया, सो दैट शुड बी एनक्लोज इन अ एल टैग में मैंने उसे क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया, मतलब उसे आगे के जो नंबर्स है वो आएंगे 1 2 3, ओके। अभी लेकिन जो सेकेंड नंबर है उसके बाद मैंने सब टाइप्स उसके जो होंगे, जो भी मेरा सेकेंड नंबर पे जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट रहेगा उसके सब टाइप से 3, लेकिन वहाँ पर मैंने यूएल टैग यूज़ किया है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कुलर मैनर, एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है। तो सिंबल के बाद में ही वो सारे पॉइंट्स आ जाने चाहिए। तो इंट्रोडक्शन टू द डीबीएमएस, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। उसके सब पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट वन डेफिनेशन ऑफ द डीबीएमएस, सेकेंड वन एप्लीकेशन ऑफ द डीबीएमएस, थर्ड वन एडवांटेजेस ऑफ द डीबीएमएस। ये सारे जो पॉइंट्स है ना वो वहाँ पर अपियर होने चाहिए वाइल यूजिंग द सर्कल। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, यूएल टैग स्पेस स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल टाइप डॉट सर्कल, मतलब क्या है, जो स्टाइल टाइप रहेगा वो रहेगा सर्कल, और उसकी डेफिनेशन वहाँ पर एनरोल कर दिए। जैसे कि मेरा उसका काम जो यूएल के कंटेंट का काम हो गया, तो नीचे उसका यूएल टैग मुझे क्लोज ही करना है। एंड देन अभी आ गया थर्ड पॉइंट को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, जो मेरा एक्चुअल इंडेक्स का थर्ड पॉइंट है। तो मैं वहाँ पर क्या करूँगी, सिंपली उससे बाहर निकलने के बाद ही, बिकॉज मेरा ओएल जो है वो अभी भी क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो उसके अंदर मैं एनरोल करूँगी एल आई ओपन एल आई क्लोज एंड आई विल गेट प्रिंट द थर्ड पॉइंट ऑफ माई इंडेक्स। वो क्या है, पोस्टग्रे एसक्यूएल, तो वो प्रिंट हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट प्रिंट होने के बाद आई मस्ट रिक्वायर टू क्लोज माई ओएल टैग, ये मुझे क्लोज करना है, ओके। नाउ एग्जाम्पल टू सॉल्व एंड बेस्ड ऑन दिस पॉइंट, सी हियर you have to print this or do the HTML code to print this execution code or screen. A nested list, a list can be a nested list inside list. फर्स्ट वन होगा द कॉफ़ी, सेकेंड है टी। अभी सेकेंड की जो टी है उसी के दो सब पॉइंट्स आएंगे, द ब्लैक टी एंड द ग्रीन टी। थर्ड जो पॉइंट होगा जो मेरे इंडेक्स के लिए है वो है मिल्क। Now we are going to start with the second type, the multi-level nested list. So for that we will start with the execution screen. तो क्या difference होता है, difference in between single level and the multi-level क्या होगा, see here कि जैसे हमने देखा सिंगल लेवल है, मेरा पूरा जो इंडेक्स है उसमें एक ही बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पर एक पॉइंट को मेरे सब पॉइंट्स है, ओके। लेकिन अगर क्या है, मल्टी लेवल अगर हम सीख रहे हैं, मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट है, तो यहाँ पर एक इंडेक्स के अंदर ऐसे 2-3 पॉइंट्स आ सकते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आ सकते हैं कि जहाँ पर क्या है, सब पॉइंट्स है। एक बार देखो यहाँ पर कि मेनली और कि जैसे ही इसका जो कोडिंग रहता है ना वो स्टार्ट कैसे करना है। देखो स्टार्ट में जो मेन अपने जो इंडेक्स है तो वो पहले देखो कि वो क्या दिखाई दे रहा है कि दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड, द मेन इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड वाइल यूजिंग द स्मॉल डार्क सर्कल, है ना, डिस्क है वो 1 2 3। अभी उसके 3 पॉइंट्स है, वो क्या है, द फर्स्ट पॉइंट इज डेली कंप्यूटिंग, सेकेंड वन द वेब डिज़ाइन। सेकेंड पॉइंट के सब पॉइंट्स जो आते हैं वो आते हैं वाइल यूजिंग द ओएल, बिकॉज हियर आई हैव बीन allocate a numbering sequence 1 2 3 और उसके जो भी रहेंगे पॉइंट, जैसे HTML5 है, द हाइपर लिंक है, इंसर्टिंग इमेजेस है, वो मेरे आ जाते हैं सेकंड जो मेरा UL का पॉइंट है वहाँ पर। थर्ड पॉइंट जो है वो है मेरा मेन जो इंडेक्स का थर्ड पॉइंट है वो UL में है, अनऑर्डर्ड है लिस्ट, लेकिन डिस्क से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी मेरे और सब पॉइंट्स है, लेकिन सब मेरे 2 सब पॉइंट्स है। फर्स्ट वन क्या है, द कंडीशनल स्ट्रक्चर, सेकंड है मेरा लूप स्टेटमेंट। लेकिन फर्स्ट जो मेरा सब पॉइंट है उसका नाम क्या है, द कंडीशनल स्ट्रक्चर। इसके भी मेरे सब पॉइंट मुझे वहाँ पर मेंशन करना है, जो होंगे 3 पॉइंट्स। तो वो मैंने कैसे यूज़ किया है, स्क्वायर से। सो ये तीनों पॉइंट मैंने स्क्वायर से किए हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के मेनली जो 2 पॉइंट्स है वो आ जाते हैं सर्कल में। तो अभी देखो इसका प्रोग्राम कैसे लिखना है, मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट। सी हियर, जैसे कि मैंने तुमको बोला था एग्जीक्यूशन स्क्रीन जो भी है उसको ठीक से एक बार
देखो, आइडेंटिफाई करो कि मेनली तुम्हारा जो इंडेक्स वहाँ पर प्रिंट होना है वो एक OL है या फिर UL है। मतलब क्या है, वो एक ऑर्डर लिस्ट है, सीक्वेंस है वहाँ पर 1 2 3 4, और देर इज़ अ नो एनी सीक्वेंस और देर इज़ अ नो एनी प्री डिफाइंड ऑर्डर देयर। मतलब क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है। तो हमारा जो अभी का जो एग्जीक्यूशन स्क्रीन था वो क्या था, अनऑर्डर लिस्ट, ओके, UL था। इसीलिए मेरा फर्स्ट जो UL स्टार्ट होता है, UL आई हैव बीन स्टार्टेड फर्स्ट UL एंड देन आई हैव बीन स्टार्टेड माई मेन द 2 पॉइंट्स ऑफ द इंडेक्स। मतलब मेरे इंडेक्स के 2 पॉइंट मैंने वहाँ पर मेंशन किए। उसका नाम क्या था, फर्स्ट वन डेली कंप्यूटिंग, वो भी मैंने एनरोल किया वाइल यूजिंग द li टैग ओपन, li टैग क्लोज। सेकंड जो मेरा था वो क्या था, द वेब डिज़ाइन, दैट इज़ अगेन आई हैव बीन एनक्लोज विद द li टैग ओपन, li टैग क्लोज। ये मेरे दो जो मेनली मेरा इंडेक्स है उसके 2 पॉइंट्स थे जो UL थे, ओके, वो मेरा हो गया। सेकेंड पॉइंट जो था मेरा, उसके बाद एक सिक्वेंशियल ऑर्डर है जो मेरा सब टाइप है, सेकेंड जो पॉइंट है। मतलब क्या है, वेब डिज़ाइन का ऑर्डर मैनर में है, सो आई मस्ट रिक्वायर टू यूज़ देयर OL टैग ओपन, OL टैग क्लोज। So all the 3 information content should be enclosed in a li tag open, li tag close। वो मैंने कर दिया नाम। देन ये हो गए मेन, मेरा सेकेंड पॉइंट इधर ख़त्म हो गया। अभी मुझे थर्ड पॉइंट जो जावास्क्रिप्ट है वो स्टार्ट करना है। जावास्क्रिप्ट में जैसे ही स्टार्ट कैसे करूँगी, अगेन आई विल गेट प्रिंट li टैग ओपन, जावास्क्रिप्ट वो नाम वहाँ पर होगा एंड आई मस्ट रिक्वायर टू क्लोज द li टैग। वो हो गया, मतलब वो मेरा मेन जो कंटेंट है मेरी मेन इंडेक्स का वो भी प्रिंट हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के 2 मेन टाइप्स है। एक क्या है, एक है कंडीशनल स्ट्रक्चर जो सर्कल्स के सिंबल से रिप्रेजेंट हुआ था, एंड सेकेंड जो है तो वो स्क्वायर में मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। मेनली उसके जो सर्कल के जो पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के जस्ट नीचे आई हैव बीन एलोकेट देयर UL स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल। वहाँ पर सर्कल आया है, तो वही सर्कल मैंने उसी के नीचे UL टैग क्लोज में आई हैव बीन गिवन द 2 सब टाइप्स मेनली। एक है देखो li ओपन, li क्लोज, इन बिटवीन दैट आई हैव बीन यूजिंग द कंडीशनल स्ट्रक्चर। सेकंड मेरा नीचे है लूप स्टेटमेंट, ये हो गया। बट फर्स्ट जो मेरा सब पॉइंट था जावास्क्रिप्ट का, उसका नाम क्या है, द कंडीशनल स्ट्रक्चर। उसको हमें स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना है। तो UL स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। स्क्वायर में प्रिंट होने के लिए वहाँ पर 3 कंटेंट चाहिए, एक द इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड केस स्टेटमेंट। वो मैंने मेंशन किया है, तो वो वैसे प्रिंट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। In this lecture we learned about the ordered list, number list, then unordered list, okay, then third one definition list, and the fourth one वो क्या था, नेस्टेड लिस्ट था, जिसमें हमने 2 टाइप्स देखे, एक था सिंगल लेवल, दूसरा था मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट। थैंक यू।